Hello, students. Welcome to the class of Mathematics, Standard 4th Maths. Today, we are going to start our chapter number 13 Fields and Fancies. Rahmat is a farmer. He grows wheat in his field. Now, see the picture. गणपत का ये फील्ड है और उसमें उसने व्हीट का जो क्रॉप है वो लिया हुआ है. He need a fence around the field. How much wire should I bought? गणपत ने ऐसा सोचा कि मुझे अपनी फार्म की बाउंड्री को फेंस से ढकना है, तो मुझे कितना वायर लाना पड़ेगा? रहमत needs to find the length of boundary of the field. उसको अपनी बाउंड्रीज को मेजर करना पड़ेगा. See the picture. रहमत है वो अपनी फील्ड का जो बाउंड्री उसका मेजर कर रहा है. He measure the boundary. तो फर्स्ट बाउंड्री 9 मीटर प्लस 15 मीटर. देखो 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 21 मीटर एंड 9 मीटर इज इक्वल टू 54 मीटर. तो उसकी जो फील्ड है उसकी बाउंड्री 54 मीटर है. नाउ रहमत bought 70 centimeter wire for the fence, बट उसकी जो बाउंड्री है वो कितने मीटर की है? 54 मीटर की. नाउ he roll up the wire and fence his boundary. तो उसमें थोड़ा सा वायर बचेगा. कितना वायर बचेगा? See here, 70 minus 54 is equal to 16 meter. Now रहमत has 16 मीटर वायर अपने पास रखा हुआ है. Now उसका जो फ्रेंड है गणपत, see the boundaries of रहमत field. He thought that I also want to boundary of my field. So can you give me the left wire? Rahmat say, oh sure, why not? Then how much wire did the Rahmat give to Ganpat? Then Rahmat gives 16 meter wire to Ganpat. Now Ganpat is going to his field and then measure his boundary. See the field. His boundary is 9 plus 15 plus 15 plus 18 is equal to 66 meter. Now, how much more wire will Ganpat need to his field? उसकी फील्ड की बाउंड्री कितनी थी? 66. और उसको क्या चाहिए था? ज़्यादा मीटर. So 66 minus 16 is equal to 50 meter. तो 50 meter more wire needed to his field. तो वो बाजार से 50 मीटर लेके अपना जो फील्ड है उसकी फेंस कंप्लीट करेगा. Now here there are 4 pictures is there. हमें उसकी बाउंड्री को मेजर करना है और बताना है which has the longest boundary. So figure number A, B, C and D is given. So let's we start to measure the boundaries of all A, B, C and D. So first figure is A. So we have to find out the longest boundary. So in the first 15 plus 16 plus 15 plus 24 is equal to 60 meter.
So our first boundary is equal to 60 meter. Now figure number B. 9 plus 6 plus 3 plus 6 plus 6 plus 12 is equal to 42 meter. So our figure number B is equal to 42 meter. Now figure number C. The boundaries of the figure number C is 9 plus 12 plus 15 is equal to 36. Now figure number D. 15 plus 15 plus 9 plus 15 plus 9 is equal to 78 मीटर. So हम पहले कौन सा फिगर सबसे बड़ा है वो देखेंगे. फिगर ए 60 मीटर, फिगर बी 42 सेंटीमीटर मीटर, फिगर सी 36 मीटर एंड फिगर डी इज 78 मीटर. सो कौन सा फिगर सबसे बड़ा है? यस, फिगर नंबर डी इज बिगेस्ट देन ऑल. Chandu's father is called the young old man in his village at 70 years of age. चंदू के पापा ने एक दिन एक ओल्ड मैन को अपने विलेज में बुलाया. He was 70 years old, but he is fully fit. वो तो एकदम हेल्दी था. Do you know his secret? क्या आप जानते हो उसका सीक्रेट क्या है? He goes to walk around the field every morning. वो रोज सुबह फील्ड यानी खेतर का वॉकिंग करने जाता था. Every day he takes 4 rounds. हर रोज वो अपने फार्म का 4 राउंड लगाता था. Now what is the total distance he covered? See the field here. The boundaries of the field is mentioned here. 100 meter, 150 meter, 150 meter and 100 meter. So the total of the field is 500 meter. Now the old man is covered how many rounds? 4. So 4 multiply 500 is equal to 2000 meter is equal to 2 kilometer. Now look at the picture in the tab. See that Ganpat's wife works in a tailor shop. गणपत की जो वाइफ है वो टेलर शॉप में काम करती है. She has to fix a lace around the table cloth. यहाँ पे टेबल क्लॉथ दिखाई रहा है ना, उसमें उसको लेस लगानी है. She bought a 100 meter roll of lace. वो 100 मीटर का लेस लेके आई है. Now look at the picture of the cloth and tell how much lace used in the one cloth. उसके लिए पहले हमें 4 of 4 बाउंड्री को ऐड करना पड़ेगा. See here 150 plus 50 plus 150 plus 50 is equal to 400 centimeter. It is converted into meter. So 400 centimeter is equal to 4 meter. Now हमें 4 मीटर की लेस चाहिए होगी to cover the tablecloth. Now B. How much lace will be used in 3 such a tablecloth? तो 1 मीटर के लिए हमें कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर. तो 3 के लिए 4 3 12 मीटर. सो 3 टेबल क्लॉथ के लिए हमें 12 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल? कितना बाकी रह गया है रोल में? तो हमारा जो टेबल क्लॉथ है टोटल 100 मीटर का लेस 100 मीटर की थी, उसमें से हमने 12 मीटर लगा दिया है. सो
100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88 मीटर लेस है, वो अभी गणपत की वाइफ के पास रह जाएगी. सो नाउ द टाइम्स बिगिन फॉर द एक्टिविटी. यहाँ पे एक एक्टिविटी है. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड ऑफ दिस शेप. तो यहाँ पे हमें 4 शेप दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ए में कितने कंप्लीट बॉक्स है, बी में कितने कंप्लीट बॉक्स है और सी में कितने कंप्लीट बॉक्स है. बाद में हमें पता चलेगा कि उससे हम क्या कर सकते हैं. तो लेट्स वी स्टार्ट टू फाइंड हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर. ए में सिर्फ एक बॉक्स कंप्लीट है, सी दिस बॉक्स. बी में एक, 2 बॉक्स है. सी में 1, 2, 3. सी में कितने बॉक्स टोटल है? 3. एंड डी में ओनली 1 बॉक्स. ए में 1, बी में 2 एंड डी में भी 2 है. ये बॉक्स भी फुल है, सो डी में भी 2 है. सो लेट्स वी स्टार्ट हाउ टू फाइंड द आंसर. हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए शेप. सो पहले हम बाउंड्री को थ्रेड से मेजर करेंगे. देन प्लेस द थ्रेड ओवर द फिगर ऑफ ऑल बाउंड्रीज. फिर हम थ्रेड को सारी बाउंड्रीज में लगा देंगे. कट द रिमेनिंग थ्रेड. फिर हमें जो बचा हुआ थ्रेड है उसको काट डालना है. मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड. फिर हम मेजर स्केल से उस थ्रेड को मेजर करेंगे. अब ऐसा हम फिगर ए, बी, सी और डी चारों में करेंगे. सो हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप. सो पहले फिगर में एक स्क्वायर है, बी फिगर में 2 स्क्वायर है, सी फिगर में 3 स्क्वायर है और डी फिगर में अगेन 2 शेप स्क्वायर है. सो विच शेप इज कवर्ड एट लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर. तो कौन सा है वो? तो स्क्वायर ए मीन्स फिगर ए इज द शेप विच कवर्स एट लीस्ट स्क्वायर. नाउ which is the shape cover the most of the square. So सबसे बड़ा कौन है? Yes, figure C. Now you take 20 centimeter long thread, make it different shapes by them and joining the ends. Place on the square sheet on the next page and find out how many squares are there in the each shape. Which is the biggest shape and which is the smallest shape. How long is the boundary of each shape. तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें सेम यहाँ पे करना है. तो ये आपको अपने आप करना है. सो ये एक्टिविटी आप लोग घर पे कर लेना. नाउ वी कैन डू our page number 154. How many different shape can you make by the joining of 2 square. तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें हमें बताना है कि हम ऐसे 2 बॉक्स को करके कितने 2 बॉक्स बना सकते हैं. लेट्स वी स्टार्ट द आंसर. तो यहाँ पे देखो रेड कलर के जो भी बॉक्स है वैसे हम डिज़ाइन बना सकते हैं. Now here 4 types of shape we can done by the joining of 2 shapes. यहाँ पे वो दिख रहा है. अब हमें क्या करना है? हमें 3 बॉक्स लेके ज्वाइन करके शेप बनाने हैं. See here how many shapes we can make. We make 7 shapes. See the figure. Yes. Now here we complete our first part. So I will send 155 to 165 page in my
नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सबको ये चैप्टर रिवाइज करना है। थैंक यू।